Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are doing well. This is Ma'am Naseem, your science teacher. Today we are going to learn about defenses against diseases, the immune system. You are requested to open your book on page number 39. This subtopic is too much important because most of the questions were given in our previous paper from this subtopic. So you are requested to read it thoroughly. Dear student, the human body the human body is protected against pathogen by the immune system. There are three main immune system that protect our body from different type of disease. The first one is innate immune system, the second is adaptive immune system, and third one is passive immune system. So briefly we are going to discuss about the innate immune system. The innate immune system is the human body's first line of defense. It responds to all pathogen in the same way. It doesn't distinguish between one type and another. Invading pathogens are dealt very quickly within a few hours. डियर स्टूडेंट, जब हम इनेट इम्यून सिस्टम की बात करते थे तो ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि व्हाट टाइप ऑफ पैथोजन दैट इंटर बॉडी. सो ये हर पैथोजन के जो है अगेंस्ट सेम मैकेनिज़्म के थ्रू डील करेगा और ये जल्दी से विद इन अ फ्यू आवर्स में पैथोजन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट innate immune system, there are different type of defense mechanism that destroy the pathogen by different way. Number one, that is mucus. So when we talk about mucus, it is a liquid and jelly like substance and it is a sticky. When we talk about the function of mucus, mucus trap करता है dirt और bacteria को. Another important thing, that is cilia. Cilia is a tiny hair-like structure that is present inside the nose, nostrils. So when we talk about cilia, cilia क्या करता है, mucus को regulate करवाता है. So mucus is what is a sticky substance. वो खुद move नहीं करता है, cilia क्या करता है, उसको movement provide करता है, उसको regulate करवाता है और उसको थ्रॉट तक लेके जाता है और यहाँ से जहाँ हम या सॉल्व करते हैं या उसको एक्सपेल करते हैं. Another important part of innate immune system, that is skin. Our skin is very efficient protective barrier. However, if it is damaged, अगर कहीं कट लगती है, कहीं इंजरी आती है तो क्या होता है, the blood forms a clot, खून का जम जाना, which quickly plug the hole and keep microorganism out. Dear student, देखा जाए तो क्योंकि जब कट लगती है या कहीं इंजरी आती है हमारे बॉडी में तो हमारे स्किन के ऊपर बड़े बड़े पोर्स, होल्स बनते हैं. तो जहाँ आप सबको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म इजिली डायरेक्टली वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर होते हैं थ्रू द होल. सो उस होल को प्लग करने के लिए हमारे सेल्स में प्लेटलेट्स होते हैं. प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं जिसकी वजह से वो होल प्लग होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाने से बच जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं या डिफरेंट पैथोजन से बच सकते हैं. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग. एंड विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू क्लॉट द ब्लड, दैट इज अवर प्लेटलेट्स. Another important thing, that is the stomach. Dear student, the stomach produces hydrochloric acid HCl which kill any pathogen that might be taken in with food or drinks. कोई भी कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक के ज़रिए कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर होता है तो हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है. यहाँ पे जो पिक्चर नज़र आ रहा है या देखो यहाँ पे देखे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल्स है. ये वांट इज़ ब्लॉक्ड बाय फाइबर एंड रेड सेल्स. आगे जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द स्टमक एसिड. स्टमक एसिड जो है दैट इज़ HCl सिक्रीट होता है. कब होता है, जब कोई भी कंटामिनेटेड फूड आप खा लेते हैं या ड्रिंक खाते हैं उसके ज़रिए कोई भी जरासीम इंटर होता है तो उसको क्या करते हैं, किल करता है. सो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबल थिंग, दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
Another important thing, any pathogen that manage to get through these defenses and enter the bloodstream are attacked and eaten by white blood cells. अगर कोई जरासीम म्यूकस से भी होके, सीलिया से भी होके, HCl से भी होके, हाइड्रोक्लोरिक से भी बच के हमारे ब्लड तक पहुंच जाता है, तो देयर इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज़ नोन एज WBCs, वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसको ईट करते हैं, ख़त्म करते हैं. यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वाइट कलर का यहाँ पे एक शेप नज़र आ रही है, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के करीब मूव करते हैं और उसको या इंगल्फ करते हैं या उसको निगल लेते हैं या उसको अटैक करके उसको किल करते हैं. डिड यू नो, यहाँ पे देखे डियर स्टूडेंट, टीयर्स, आपकी आंसू, दैट इज़ आल्सो एंजाइम which are able to digest pathogens and prevent them from entering the body around the eyes. Next one is, dear student, that is the adaptive immune system. Unlike the innate immune system, the adaptive immune system remember which pathogen it has dealt with in the past and is able to quickly destroy them again. White blood cells produce chemicals called antibodies. Most important line is this, या MCQ में आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा. वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल दैट इज नोन एज एंटीबॉडीज. So each antibody is specific. This means that an antibody which destroy pneumonia bacteria, for example, will not destroy bacteria that cause any other disease. Dear student, यहाँ पे adaptive immune, when we talk about innate immune system and adaptive immune system, innate immune system में हमने पढ़ा कि ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है, डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि कौन सा पैथोजन है, क्योंकि वो हर पैथोजन के खिलाफ सेम तरीके से लड़ता है. लेकिन when we talk about adaptive immune system, adaptive immune system का मेमोरी बड़ा तेज़ होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा नमूनिया का शिकार हुआ है, अब दोबारा फिर नमूनिया उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ऑलरेडी नमूनिया के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में होते हैं. तो वो जो ही बंदा नमूनिया का शिकार होगा, वही जो है एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होना स्टार्ट करेंगे और नमूनिया जो पैथोजन है उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे. नाउ डियर स्टूडेंट, मोस्ट एंटीबॉडीज़ वर्क लाइक दिस. ये आपको बता दिया गया. मोस्ट मच इम्पॉर्टेंट डायग्राम इज़ दिस, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तो आप लोगों ने इसी तरह का इसी तरीके से ही आपने ड्रॉ करके लेबलिंग करना है. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे देखें, ईच टाइप ऑफ बैक्टीरिया और वायरस हैज़ डिफरेंट केमिकल्स ऑन इट्स सरफेस सिमिलर टू द वे ऑल ह्यूमन हैव डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स. कोई भी पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, उनके सरफेस एरिया पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल होता है, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं. जिस तरह हर बंदे का फिंगरप्रिंट अलग होता है, इसी तरह आगे यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो गए. उसी केमिकल को डिटेक्ट करने के बाद, चाहे या ये वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा या पैरासाइट होगा, इसी पैथोजन को डिटेक्ट करने के बाद, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. व्हेन द बॉडी डिटेक्ट दीज केमिकल्स, वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे क्या, एंटीबॉडीज़. एंड द थर्ड वन इज़ antibodies combined with the chemicals, this kill the microorganism by making them by burst. यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, यही एंटीबॉडीज़ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घेरे में लेंगे, उसको दरमियान में लेंगे, या उसको क्या करेंगे, बर्स्ट करेंगे, उसको या किल करेंगे या उसको बर्स्ट करेंगे, कंप्लीटली उसको ख़त्म कर देंगे. Dear student, white cells that produce antibodies can remain in the body for long periods, ready to make more antibodies. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है इसका मेमोरी बड़ी तेज़ हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर प्रीवियस कोई बीमारी बंदा ऑलरेडी शिकार हो चुका है, तो उसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं और वो ब्लड में मौजूद होते हैं. अगर दोबारा वही बीमारी इसके ऊपर अटैक करेगा, तो फिर उसको आइडेंटिफाई करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, एकदम से आइडेंटिफाई होगा और एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होंगे. To make more antibodies, if the same pathogen get into the body, this protection is known as immunity. The more pathogen the body is exposed to, the more type of antibodies are made, and the more diseases the body is immune to. बेटा,
यहाँ पे देखें द मोर पैथोजेंस आर बॉडी इज एक्सपोज, अगर फॉर एग्जांपल वायरस ने भी आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया, बैक्टीरिया ने भी किया, फंगी ने भी किया, पैरासाइट ने भी किया, तो आपकी बॉडी में इंडिविजुअली हर एक के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। We are all born with the ability to produce antibodies, but this gradually fades away to be get older. But the time you are teenager or young adult, your ability to produce antibodies will have almost disappeared. So adult must rely on defense mechanism against infectious diseases such as chickenpox, measles, mumps, scarlet fever. बट हम यहाँ पे ये कह चुके हैं, जो ही आप की ग्रोथ बढ़ती जाती है, आपके जो एंटीबॉडीज़ है वो फेड हो जाते हैं, ऑलमोस्टली जो है डिसअपियर होते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो वाई दिस हैपन? सो ये आपको पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टीन एजर जो होते हैं, यंग होते हैं, वो अपने डाइट का ख्याल सही से नहीं रखते हैं, वो स्ट्रेस होते हैं, लेट नाइट स्लीपिंग होते हैं, अपने आप को स्लिम दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए डाइट करते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बनना कम हो जाते हैं। They build up during childhood. This helps to explain why children have generally coped better against COVID-19 than adult. यही हमें बता रहा है कि जो COVID-19 का शिकार हो गए थे बच्चे, एकदम से रिकवरी की तरह आ रहे थे एज कम्पेयर टू द adult. Last one is, dear student, that is the passive immune system. Some disease can make you very ill. You couldn't die before your white blood cells. You could die before your white blood cells can make enough antibodies to save you. Only immunization can protect you. A vaccine, when we talk about vaccine is what? A vaccine consisting of dead or weakened pathogens is injected into the body. This is called vaccination. This results in you getting a mild form of disease. So mild you probably never even notice it. However, the vaccine is enough to cause the white blood cells to make antibodies against the disease. If in the future live pathogen of the same type should get into your body, you will already be protected against them. Now, dear student, some diseases can be prevented or cured by injected blood serum. From a person who have recovered from the disease, the serum, which is mainly blood plasma, will contain antibodies which will destroy the disease pathogen. डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे देखा जाए तो पैसिव इम्यून सिस्टम में ओनली इम्यूनाइजेशन आपको सेव कर, अगर बंदा इतना बीमारी का शिकार होता है, वो इतना इल होता है, रिकवर, अगर वाइट ब्लड सेल्स का इंतज़ार करते रहेंगे तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। सो एट दैट टाइम आपको सिर्फ कौन बचाता है? इम्यूनाइजेशन आपको बचाता है। अब वैक्सीन की बात करते तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है बेटा? वैक्सीन के अंदर डेथ या उस पैथोजन को वीकेंड करके उसको कमज़ोर करके आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और वो अंदर जाके एंटीबॉडीज़ को कहता है कि आप इसके ख़िलाफ़ जो है वाइट ब्लड सेल्स को अलर्ट करता है, यू हैव टू मेक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ऑफ दिस डिजीज़। और दूसरा तरीका ये है कि जब कोई बंदा ऑलरेडी उस बीमारी का शिकार हो जाए, ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद उससे सीरम उठाया जाता है। सीरम में एक्चुअली क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। उसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं और उसको दूसरे पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है जो ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हो चुका है किसी, तो फिर वो रिकवरी की तरह आ जाता है। बेटा यहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैसिव इम्यून सिस्टम या इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में प्रीवियस जो पेपर हमारा आया था, हम जो क्वेश्चन आया था, दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यून सिस्टम एंड द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब इनेट इम्यून सिस्टम की हम बात करते तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे म्यूकस भी है, सीलिया भी है, स्किन भी है, जो डिफेंड करते हैं हमारे बॉडी को। स्टमक है, स्टमक किस तरह से डिफेंड कर रहा है, वाइट ब्लड सेल्स किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, दैट इज़ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं।
तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का जो मैकेनिज़्म के पैथोजन के ख़िलाफ़ लड़ने के वेरियस तरीके होते हैं एज़ कम्पेयर टू द जो है इनेट इम्यून सिस्टम। यहाँ पे हर जो पैथोजन के ख़िलाफ़ डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बनाया जाता है और वो किस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं यहाँ पे तरीका भी बताया गया है। क्यों एडल्ट में जो है एंटीबॉडीज़ आलमोस्ट डिसअपीयर्ड होते हैं, वाई दिस इज़ हैपन, सो ये भी तरीका बता दिया गया है जिस तरह मैंने आपको बता दिया। आगे जो लास्ट में बंदा जो है वो दैट इज़ अबाउट द पैसिव इम्यून सिस्टम। पैसिव इम्यून सिस्टम में मोस्टली जिक्र किया है इम्यूनाइजेशन ही बंदे को प्रोटेक्ट करता है। तो इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन आ जाते हैं। तो वैक्सीन के अंदर क्या चीज़ है, वैक्सीन भी अगर नहीं है तो फिर ब्लड सीरम के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट, ये भी मच इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अवॉइड कैचिंग अ डिजीज़। अपने आप को किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से कुछ यहाँ पे जो है प्रिकॉशन में दिया गया है। नंबर 1 क्या है, कुक फूड थॉरली एंड ईट इट whilst इट इज़ हॉट, कीप फूड इन अ फ्रिज और अ फ्रीज until it is needed. नंबर 2 आपके पास क्या है, बाथ और शावर रेगुलरली टू रिमूव sweat and dirt especially from hair, feet and under the arms. Make sure clothes are changed and washed regularly. यहाँ पे पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। फूड को थॉरली कुक करके खाना चाहिए। वॉश योर हैंड थॉरली बिफोर हैंडलिंग सम, स्पेशली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। पुट अ प्लास्टर ओवर अ कट अंटिल इट हील। जब कोई कट लगती है, ज़ख़म लगती है, तो यहाँ पे आप सनी प्लास या कोई भी प्लास्टर लगा सकते हैं ताकि जो है वो होल बनते। मैंने आपको कहा कि आपको नज़र नहीं आते, अगर विद द हेल्प ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखा जाए तो फिर वो होल नज़र आते। तो जब भी ज़ख़म लगती, कट लगती है, तो उसके ऊपर कोई प्लास्टर लगाया जाए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म अंदर नहीं जा सकते। और लास्ट जो हमारे पास है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए और वेयरिंग अ मास्क। जब भी किसी पब्लिक एरिया में जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो आप ज़रूर मास्क पहना करें, क्योंकि इन्वायरमेंट में, बाहर एयर में बहुत सारे एयरबॉर्न डिजीज़ कहा जाता है इनको। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19 है, ये वो पैथोजन है जो एयर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जो ही आप इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो वो आपके नोस्ट्रिल थ्रोट के ज़रिए आपके इंटरनल जो है ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। लास्ट हमारा सब टॉपिक है बेटा, दैट इज़ अबाउट स्ट्रेटजीज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन, मजबूती उसको कैसे बूस्टअप कैसे करा सकते हैं। नंबर 1 बेटा आपके पास है, ये भी प्रीवियस पेपर में आया है, तो आपने थोरली इसको, इस स्टेप्स जो डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, 4-5 पॉइंट्स का वो पूछते हैं, पेपर में पूछा जाता है, तो इन पॉइंट्स को लाजमी आपने याद करना है। सबसे पहला क्या है, गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, वैक्सीन लगवाए। जिस तरह डिफरेंट डिजीज़ के ख़िलाफ़ डिफरेंट वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो वैक्सीन अपने जो है वैक्सीन लगाया जाए। वैक्सीन में होता क्या है, जो डेथ या वीकेंड क्या होता है, वहाँ उसमें क्या होता है वैक्सीन में, हमने बताया था। वैक्सीन में जो है डेथ या वीकेंड पैथोजन होता है जो इंटर होता है आपके ब्लड में, और वही पैथोजन WBC को बता देता है। वही जो हम WBC को बताता है, WBC फिर उसके ख़िलाफ़ क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। डू रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट। ठीक है, गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप और डोंट गेट ओवर वेट। ट्राई नॉट टू वरी, avoid alcohol and smoking. So these are the main points in which we are going to apply in our daily life to escape ourselves from different type of disease and boost our immune system. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। और ओवरऑल इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है जो पेपर में आने वाले हैं। सबसे पहले फ्रॉम द स्टार्टिंग आई विल टेल यू दैट इज़ अबाउट द पैथोजन के ख़िलाफ़ हर बैक्टीरिया, वायरस, चाहे पैरासाइट हो चाहे फंगी हो, उनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपकी बॉडी में कैसे होती है, कि वो किस तरह से इंटर होते हैं और किस तरह से बॉडी को इल करते हैं, ये आपने पढ़ना है। पैथोजन एंड डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा पैथोजन किस डिजीज़ को कॉज करता है। सिम्टम्स आप पढ़े, प्रिवेंटिव मेजर पढ़े, अपने आप को कैसे अवॉइड करते हैं ये आप पढ़े, और आगे जो है डिफेंस मैकेनिज़्म को आपने सही से रीड करना है। ठीक है, इनेट इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंड पैसिव इम्यून सिस्टम को आपने पढ़ना है। सो हाउ टू अवॉइड कैचिंग अ डिजीज़, ये सही से आपने पढ़ना है। और लास्ट हमारे पास है स्ट्रेटजीज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट चैप्टर के जो वीडियो है वो मैं अपलोड करूँगी सेकेंड टर्म का। थैंक यू सो मच, टेक केयर।